Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's such a joy to study the word together, isn't ये it? आनंद की बात है कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहा हूँ। We are here today studying through the gospel according to Mark. और आज हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We are in chapter 14. और हम 14वां अध्याय में हैं। If you see here, Jesus has been really telling his disciples in the last moments of his life on earth before he takes up the cross. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे यीशु मसीह अपने शिष्य से यहाँ पे बातें कर रहे हैं क्रूस में जाने से पहले। And we can understand the disciples probably are not figuring out all of that Jesus is saying properly. और जो कुछ भी यीशु मसीह ने उन्हें बताया अब तक उन्हें ठीक तरीके से समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। So this is the most crucial time of Jesus' life on earth. और ये यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण समय है पृथ्वी में। In fact, it is more crucial to our lives as well because it relates to our life. और ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही मुख्य बात है। So we saw previously that Jesus instituted the new covenant. और हमने जैसे पहले देखा कि यीशु मसीह ने नए वाचा का स्थापना किया। He instituted the new covenant by establishing on the Passover night. और फसा हुआ के रात में उन्होंने इस वाचा का स्थापना की। And we call it the Last Supper, or the church calls it today as communion service. और हम इसे अंतिम भोजन भी कह सकते हैं या फिर कलेशिया इसे कहते हैं प्रभु भोजन। So we have been studying through some of the essential truths about Jesus' life, which is related to our own lives. और हम यीशु मसीह का अध्ययन कर रहे हैं उनके जीवन को लेके, उनके सच्चाई को लेके। And it really gives us the insight why we should believe in Jesus and why he is the way for our salvation. और इससे हमें एक नई दृष्टि मिलती है कि हमें क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए और उनके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। Our salvation depends on Jesus Christ and upon his sacrifice. और हमें उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिलती है और उनके बलिदान के द्वारा मिलती है। He took care of the penalty of our sins. और उन्होंने हमारे पापों का बोझ उठाया। He suffered what we should have suffered. जो हमें भुगतना चाहिए था वो भुगते। He died the death that we should have died. हमें मृत्यु मिलनी चाहिए थी लेकिन वो मृत्यु गए। And taking that, he gave his own life for us. और उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया। He gave us beauty for ashes and the filth of our life. हमारा जैसा कचरा जैसा जीवन है उसको उन्होंने अपने ऊपर लिया। So the reason for me to teach this truth today is that we all have the same hope in Christ. और मैं ये आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह में हमें आशा मिलती है। And that you commit your life upon the sacrifice of Jesus Christ, which provides salvation, and there is no other way. और हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमें उद्धार मिलता है। Remember, याद रखो your salvation depends only upon the sacrifice of Jesus. और ये याद रखो कि हमें हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। उन्होंने जो बलिदान दिया है उनके द्वारा ही हमें मिला है। So believe in him. तो उनके ऊपर विश्वास करो। So turn with me to Mark chapter 14 verse 27. और अभी आप मेरे साथ मरकुस का 14वां अध्याय में 27वां वचन में आए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है, मैं रखवालों को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। So Jesus says, you will fall away. और यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा तुम ठोकर खाओगे। Right before he's going to go to the cross, he says, hey, you guys are going to fall away. और क्रूस में जाने से पहले यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ठोकर खाओगे। Fall away? ठोकर खाओगे? What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means to be stumbled or to be offended. इसका मतलब ये है कि तुम तितर बितर हो जाएंगे और शायद तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आएगी। Can someone who follows Jesus fall away? क्या जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलता है क्या वो ठोकर खाएगा? We all quote scriptures, saying in our faith that if you follow Jesus, if you follow God, you will be victorious. और हम हमेशा वचन के द्वारा हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप विजय प्राप्त करेंगे। Many leaders teach today positive confession, declaration, affirmation in the churches.
और बहुत से अगुवाई आजकल कलेशिया में बोलते हैं कि सकारात्मक बातें करो, घोषणा करो, और ये कलेशिया में हो रहा है। It can feel good, but it can be dangerous. इससे तुम्हें अच्छा तो लगता होगा, लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। Because I believe this is more like speed thrills but kills. मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा है जैसे कि हमें तेजी अच्छी लगती है, लेकिन उससे मृत्यु भी हो सकता है। So right after the Passover, Jesus says, you're gonna fall away. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि फसह जैसे ही खत्म हुआ तो उन्होंने अपने चेले से कहा कि तुम बिखर जाओगे। What a contrast. ये कितना अलग बात उन्होंने कहा। Firstly, we saw Jesus in the Passover says, this is my body that is broken for you. सबसे पहली बात उन्होंने फंसा हुआ दिन में कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। This is my blood of the new covenant. He said that as well. और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा लहू का नया वाचा है। This is very controversial and different compared to what the rabbis taught, because they all would be teaching on a Passover about the time when Moses was leading the Israelites. और ये बहुत ही विवादित बात जो है यीशु मसीह ने कहा, जो राबी लोग जो शिक्षा दे रहे थे उसके विपरीत जो है यीशु मसीह ने कहा, जो मूसा के बारे में राबी ने जो शिक्षक ने जो शिक्षा दिया उससे अलग यहाँ पे यीशु मसीह ने सिखाया। And then secondly we see Jesus saying, you guys are going to fall away. और दूसरी बात है यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम तितर बितर हो जाओगे। Probably their heads are spinning. अभी ये सोच के शायद उनका दिमाग चकरा रहा है। So I can understand the disciples and their feelings. मैं समझ सकता हूँ कि यीशु मसीह के चेलों का क्या वहाँ पे वो क्या सोच रहे होंगे। That it is something weird and they don't completely understand it. हाँ, कुछ तो अलग बात यहाँ पे यीशु ने कहा है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। See, Jesus knew this very well, that they're going to fall away, and he also had them in the Passover meal with him. और यीशु मसीह को ये पूरा मालूम था कि वो ठोकर खाएंगे, और इसलिए वो फसह के दिन में भी उन्होंने चेलों को कहा। Pay attention. आप ध्यान दो। He knew that these disciples are going to fall away, but still he had them be part of the Lord's table, और उन्हें यीशु मसीह को मालूम था कि उनके चेले ठोकर खाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेलों को न्योता दिया प्रभु के मेज में भाग लेने के लिए। Do you see what I see? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या देख रहा हूँ? Oftentimes, people who, are part of the church avoid coming to the church or stop partaking in communion, or those who want to take baptism avoid taking baptism because they think they may go back into sin or fall away into sin again. कुछ लोग कलेशिया में ऐसे भी है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु भोजन में भाग नहीं लेते, ना ही वो बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो वापस पाप करेंगे। The fear of relapsing into sin, or that if I would sin going forward, I may hurt Jesus, or maybe I should not be part of the church because of that, or avoid baptism. I believe in Jesus, but I don't think I can take baptism. और वो ये भी विश्वास करते हैं कि अगर मैंने प्रभु भोजन लिया या बपतिस्मा लिया तो शायद मैं वापस पाप में पड़ जाऊंगा, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। इससे बेहतर यही है कि मैं कलेशिया ना जाऊं, बस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूं, यही मेरे लिए काफ़ी है। Let that not stop you from coming to Jesus or to the church or taking baptism, brother, sister. ये ऐसा सोच आप में नहीं होना चाहिए, और इसके कारण आप कलेशिया में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Because it's more dangerous for our souls on depending upon our self-assurance and self-dependence and confidence, और ये हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए और ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर हम अपने आप के ऊपर निर्भर होंगे, और ऐसा हमें लगता है कि बस हमें अपने आप के ऊपर निर्भर करना है और विश्वास करना है। If you're thinking like this, may the Lord redeem you from this thought. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको ऐसे सोच से छुटकारा दे। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आए। Come, let's follow Jesus. यीशु मसीह के पीछे चले। You're never going to be perfect, but you should be trying to follow Jesus with your best in just depending upon His strength. आप कभी भी उत्तम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि हमें 100% अपना अच्छा देना है कि हम यीशु मसीह के पीछे अच्छे से चल सकें। Nobody is perfect.
हम में से कोई भी उत्तम नहीं है, I am not perfect. मैं भी उत्तम नहीं हूँ। Some of the greatest preachers, pastors, they would always agree with me saying, none of us are perfect. और बड़े बड़े अगुवाई लोग, बड़े बड़े पासवान लोग भी यही मेरे साथ वो भी यही कहते होंगे कि हम में से कोई भी उत्तम नहीं है। But you know what? लेकिन पता है क्या, Just try your best to follow him. बस अपना सब कुछ अच्छा दो, अपना बेस्ट दो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। That's my suggestion. और वही मेरा सुझाव है आपके लिए। If you fail, walking with Jesus, ask for wisdom, pray, and ask the Lord to help you. अगर आप कहीं पे असफल हो रहे हो तो परमेश्वर से आप मांगे, परमेश्वर की मदद पूछें। The journey with Christ is not about our strength or our confidence. और ये सफ़र ऐसा नहीं है कि ये हमारा ताकत और हमारा आत्मविश्वास कितना है उसके ऊपर निर्भर नहीं है। It's about His strength, depending upon His strength and having confidence upon Him and the way He would lead us. और हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए, उनके ताकत और उनके आत्मविश्वास ही हमारा आत्मविश्वास है। Because He is the author and the finisher of our races. क्योंकि उन्होंने जो काम हमारे अंदर शुरू किया है वही उसे खत्म करेंगे। He is the Alpha and the Omega. और वो सर्वज्ञानी और सर्वशक्ति है। He knows everything. वो सब कुछ जानते हैं। So Philippians chapter 1 verse says this. और फिलिपियों का अध्याय 1 में ये कहता है, Verse 6. वचन 6वां, The one who began the good work in you will bring it to completion. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Amazing, right? ये बहुत ही अद्भुत है ना। So now if you come back with this into verse 27. अगर आप इसी वचन को लेकर आप वचन 27 में आए, Now we can see that Jesus is quoting a scripture from the Old Testament, a prophecy about him. और यहाँ पे अभी यीशु मसीह पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी उसी को लेकर यहाँ पे वो बोल रहे हैं। Especially that event that's going to happen that night. और उस घटना के बारे में जो उस रात को होने वाला है। I will strike the shepherd. उन्होंने कहा कि मैं रखवाले को मारूंगा। Here we see Jesus is saying, I will strike the shepherd, quoting the Old Testament scriptures. और यहाँ पे जब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं रखवाले को मारूंगा, ये वो पुराने नियम में को यहाँ पे ले आ रहे हैं। When the shepherd is beaten, the sheep is scattered. और जब रखवाले को मारा जाता है तो भेड़ तितर बितर हो जाते हैं। When a shepherd, a leader, a pastor, an authority is attacked, affected or hit, the sheep is affected and hurt too, or scattered. जब रखवाले को या पासवान को या अगुवाई को जब मारा जाता है तो उसके भेड़ या उसके जो लोग हैं, जो समूह है, जो कलीसिया के लोग हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं। The flock is threatened by it. और भेड़ अलग हो जाते हैं। The flock is threatened by it. और इससे भेड़ डर जाते हैं। It's natural. और ये मुमकिन है। Our master and shepherd is Jesus Christ. और हमारा रखवाला यीशु मसीह है। And if he is beaten, hit, अगर उन्हें मारा जाता है, obviously everyone around him is going to be affected, you and me. तो उनके आसपास जितने भी लोग हैं जैसे आप और मैं, हम भी डर जाएंगे। If you were part of the situation, probably we would also have reacted the same way the disciples reacted. अगर हम भी उस स्थिति में अगर होते जहाँ पे यीशु मसीह के चेले हैं तो हम भी शायद वैसा ही बर्ताव करते। So you have to understand, you're so connected to Jesus. आपको ये समझना है कि जब आप यीशु मसीह से इतने जुड़े हुए हो, The flock is threatened by it. और भेड़ को यहाँ पे चुनौती मिलती है, It is natural. और ये संभव है। See, this is one reason you must understand how well your life is connected to your shepherd, that is your pastor. और इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जीवन कितना पासवान से जुड़ा हुआ है। A pastor is one way, a shepherd, under shepherd, a shepherd who is working for Jesus, who is the good shepherd. एक पासवान ऐसा है जैसे वो भी रखवाला है जो यीशु मसीह के नीचे काम कर रहा है। You need your pastor to stay strong. और आप चाहते हैं कि आपका पासवान दृढ़ रहे, And that he would be safe, so that you would be strong and safe, walking in faith, following the Lord. और वो भी सही सुरक्षित रहे ताकि जब अगर वो सही सुरक्षित है तो हम भी सही सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे। It is unfortunate
that many congregations don't even pray for their pastors on a regular basis. और ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोग पासवान के लिए प्रार्थना नहीं करते, उनके परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करते। Understand this ये समझने की कोशिश कीजिए and pray for your pastor's family. और आपके पासवान के परिवार के लिए प्रार्थना करें। They go through enormous amount of stress and suffering and pressure in this world in serving you and taking care of you and also taking care of their own selves. वो इतने दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं क्योंकि वो आपका ख्याल रख रहे हैं, अपना परिवार का ख्याल रख रहे हैं, कलीसिया का ख्याल रख रहे हैं। Every day remember your leaders, family and their children in your prayers. और इसलिए हमेशा आपके अगुवाई के परिवार को हमेशा याद करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करो। And if you see a pastor going through something, remember to pray and ask them how you can pray for them. अगर आप देख रहे हो कि आपके पासवान मुश्किल में हैं, तो आप उनसे पूछो और उनके लिए प्रार्थना करो। This is my encouragement to you. तो मैं यही आपको उत्साहित करना चाहूँगा। A small advice. ये छोटा सा सलाह है। Verse 28. वचन 28। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊँगा। After I rise, I will go before you to Galilee. और उन्होंने कहा कि मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊँगा। Jesus said, you will all fall away, but remember, hey, I'm going to rise up again and I'm going to go before you and I will meet you at Galilee. और यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मैं जी उठने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे आगे चला जाऊँगा और मैं तुम्हें गलील में मिलूँगा। Jesus spoke some of the shattering words to his disciples. और यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें अपने शिष्यों से कहा। And yet he promises them that he will rise again and he will go before them and that he's going to meet them at Galilee. What a promise. और फिर भी उन्होंने उन्हें वादा दिया कि वो वापस से जी उठेंगे और उन्हें गलील में मिलेंगे। Yes, there's going to be a problem tonight. हाँ, आज रात को परेशानी होने वाली है। You will all run away and you'll all fall away. तुम सब तितर बितर हो जाएंगे, तुम सब भाग जाओगे। But don't worry. लेकिन चिंता ना करो। I'm going to rise again and then I'm going to meet you guys. मैं फिर से जी उठूंगा और मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। John 16 verse 33 says this. और यूहन्ना का 16:33वां वचन ये कहता है। In the world we have many tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. This is what Jesus said. और यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। There are many times in our Christian walk we will all face temptations, storms, winds and waves. हमारे क्रिस्ती जीवन में हम कभी कभी प्रलोभन, आंधी, तूफान, ये सारे चीज़ों से गुजरेंगे। But we must understand that the Lord allows these things in our lives so that we may become and grow stronger in Him. और कभी कभी यीशु मसीह हमारे जीवन में ये सब कुछ होने देते हैं ताकि हम और ज़्यादा दृढ़ और ज़्यादा हम यीशु मसीह के पीछे चल सके। It might cause some difficulty for a small season, but in the end, there's going to be a great reward and great hope, you know. And I think that is what we should be hoping for. शुरुआत में हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अंत में हमें वादा दिया गया है कि हमें और ज़्यादा आशीष, और ज़्यादा आशा और प्रतिफल मिलेगा। So be calm and be humble. इसलिए आप शांत रहो और नम्र रहो। Depend on His word उनके वचन के ऊपर निर्भर रहो and receive correction and warning when He says it or the word comes to you in a right way. और जब परमेश्वर का वचन हमें सही कराता है, हम कहीं पे भी गलत है या भटके हुए हैं या हमें परमेश्वर चेतावनी देते हैं, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। Because only that way, depending on His word, we will overcome. क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम विजय पा सकते हैं। Right now, there's a lot of trouble, you know, for Christians and Christian leaders and churches and believers all around the world. और अभी पूरे दुनिया में हम देखते हैं कि कलेशिया में और अगुवाई के लिए, पासवान के लिए बहुत मुश्किल का दौर है। It is a testing time. और ये परीक्षा का समय है। And I know it's challenging. और मैं मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक चुनौती है। But how we handle it and how we face it matters. और हम किस तरीके से उसे हैंडल करते हैं या किस तरीके से उससे बाहर आते हैं, ये मायने रखता है।
We shouldn't blame others. हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए We shouldn't say that it will never happen to us. और हमें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये हमारे साथ तो नहीं होने वाला है। And we shouldn't also say arrogantly saying, oh, when it happens, you will see, I will prove that I'm better. और ऐसा भी आपको घमंड में नहीं बोलना है कि देखो जब होगा ना तब तुम देख लो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। But all this is human strength. और ये सब कुछ एक मनुष्य का ताकत के ऊपर निर्भर है। Nothing but just the flesh. वो सिर्फ अपने ताकत के ऊपर निर्भर होते हैं। It is not a spiritual approach. और ये एक आत्मिक तरीका नहीं है। The spiritual approach is, आत्मिक तरीका, Lord, what should I do? आत्मिक तरीका ऐसा है जब आप पूछते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं? Lord, what's your plan? परमेश्वर तेरा योजना क्या है? Lord, how can I go through the situation and get out of it? Because it's so hard for me. हे परमेश्वर, ये परिस्थिति जो मेरे पास अभी जो आई है इससे मैं बाहर कैसे निकलूं? That's the way to pass through and navigate through these challenges that we are facing today in our generation in the church. और यही तरीका हमें अपनाना चाहिए और परमेश्वर के द्वारा ही हमें परमेश्वर से पूछना है हमें क्या करना है। When you have opposition, जब आपका विरोध में कोई खड़ा होता है, when somebody tries to persecute you, और जब कोई आपका क्लेश करता है, pray for them, love them, don't blame them. जब कोई भी आपके साथ उत्पीड़न करता है तब भी आप उनसे प्रेम करो। So understand that blaming others is not going to get you anywhere. ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई आपको दोष देता है तो आप उन्हें दोष ना दें। And don't even be so confident that, you know what, it's happening to them because they didn't do the right way. I will do the right way. I'm doing the right way, so it's not going to happen to me. और ऐसा भी ना सोचो कि वो लोग गलत तरीका अपना रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं अपनाऊंगा या मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ, उस घमंड में ना रहे। Because Jesus said in this world we will have many tribulations. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हमारे साथ बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, क्लेश आएगा, उत्पीड़न आएगा। Only He has overcome the world. क्योंकि और यीशु मसीह ने ही विजय पाया है। So to be victorious, विजय पाने के लिए, to overcome the world, इस दुनिया से विजय पाने के we need लिए to follow Him. हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। Blaming others or saying that I can handle it makes no sense. दूसरे को दोष देना या ऐसा बोलना कि हाँ ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, ये सही तरीका नहीं है। Pray. प्रार्थना करें, Ask the Lord for guidance. परमेश्वर से प्रार्थना करें, But at the same time, और उसी के साथ don't give up. आप हार ना माने, Don't fret. आप डर ना जाए And don't walk away from Jesus. और यीशु मसीह से दूर ना हो, Because God has a plan. क्योंकि परमेश्वर का योजना है He's doing something. और वो कुछ कर रहे हैं। Wait patiently. आप धीरज बांधे रखें, There is hope. आशा है। He has not left us as orphans. उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। He's given us families, love, His word, pastors. उन्होंने हमें परिवार दिया है, प्रेम दिया है, पासवान दिया है। When God is with us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? He will bring us out of it. वो हमें जरूर इससे बाहर ले आएंगे। Just hold on. बस हमें वहीं पे खड़े रहना है। See, in verse 28, Jesus is now prophesying. 28वां वचन में यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं। I'm going to rise again and you will see me again. मैं जी उठने वाला हूँ और तुम मुझे फिर से देखोगे। Which means, don't worry. इसका मतलब ये है कि तुम चिंता ना करो, It's not going to be long. तुम अकेले नहीं होने वाले हो It will not be longer. और ये ज़्यादा दूर नहीं होगा And I will meet you there very soon. और मैं तुम्हें वहाँ पे बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। Did the disciples catch it? क्या ये शिष्य को समझ में आया? I don't think so. मुझे नहीं लगता उन्हें समझ आया, But did you catch it? लेकिन आपको समझ आया? I hope so. मैं ये उम्मीद करता हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Let's pray. Father, I just want to thank you for your word. Lord, help us understand your ways, especially when we go through trouble. Lord, we right now ask you to give us favor and help and protection, especially for my brothers and sisters who are going through suffering and persecution and challenges. I pray, Lord, you speak to us from your word with encouragement and bless us and lead us. And we ask you, Lord, what should we do? What's your plan? Help us. Jesus, in your name I pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे।
लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।